Students, today we are going to start next topic of revision. We are doing the revision at glance. So let's learn the unification of Germany, what happened and how was the unification of Germany had taken place. Efforts were made by the middle class Germans to divide the different regions of German Confederation into a nation states. As in the previous video or yesterday, I told you about the unification of Germany, that these were the efforts made by the middle class Germans who made the efforts for the unification of Germany. They were middle class Germans, educated elites, and these efforts were suppressed by the monarchy and military and the landowners in Prussia. But these efforts were suppressed by the monarchy and militarymen and the landowners in Prussia. They did not want the unification of Germany. So the national unification was undertaken by the leadership of Prussia. So the leadership was given to Prussia, and Otto von Bismarck of Prussia, he was the chief minister of Prussia. He played important role in the unification or in the act of nation building. And in 1871, Kaiser William I was declared as the new emperor of a new empire. Means after a lot of efforts or in the leadership of Otto von Bismarck of Prussia, in 1871, Kaiser William I was declared the new emperor of a new empire. In this way, the unification of Germany established Prussian dominance in Europe. It established Prussian dominance in Europe. And after this, currency, banking, legal, and judicial systems were all introduced by the new German Empire. So, in this way, there was the unification of Germany. Next topic is unification of Italy. Mid 19th century, Italy was divided into 7 states. Only Sardinia Piedmont was ruled by the Italian princely house. Only Sardinia Piedmont was ruled by इटालियन प्रिंसली हाउस. मीन यहाँ पर कौन शासन कर रहे थे? एक पार्ट जो था सर्डिनिया पैडमोंट का, वहाँ पर इटली के जो राजकुमार थे वो शासन कर रहे थे. इट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस एंड नॉर्थ वाज रूल्ड बाय द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर्स. नॉर्थ वाज रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, वेयर इज द सेंटर वाज अंडर पोप. नॉर्थ में क्या था कि किनका शासन था? जो ऑस्ट्रियन के जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उनका शासन था. एंड सेंटर वाज रूल्ड बाय पोप पीपल, यानी जो चर्च के लोग होते थे, क्लर्जी मैन होते थे, फादर्स लोग होते थे, उनके द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता था. एंड द साउथ वाज अंडर द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. मीन्स यहाँ पर स्पेन के जो स्पेनिश पीपल थे, बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करने वाले, वो साउथ में शासन कर रहे थे. सो नॉर्थ पार्ट जो है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर कर रहा था. सेंट्रल पार्ट वाज रूल्ड बाय पोप्स एंड द साउथ वाज अंडर द किंगडम ऑफ बर्बन डायनेस्टी, और these were the rulers of Spain. What happened around 1830s? For uniting Italian Republic, Giuseppe Mazzini program was formed, and Giuseppe Mazzini was a person who had formed a secret society. Young Italy was the name of this secret society, and he formed this society during this time. Earlier revolutions were failed, as you know that earlier in 1831 and in after that in 1848 these revolutions were failed. And failure of revolutionary uprising from 1831 to 1848 by King Victor Emmanuel II. Count Cavour. Who was Count Cavour? Count Cavour was the chief minister of Sardinia Piedmont.
he was given the responsibility for the unification of Italy. Led the movement for the unification of Italy. Sardinia Piedmont's force marched into South Italy and the two Sicilies and drove out the Spanish rulers. तो जो सर्डिनिया पैडमोन्स की जो फोर्स थी, दे मार्च इनटू साउथ इटली, वो साउथ इटली के पार्ट में की ओर बढ़े, और साउथ इटली में किनका शासन था? स्पेनिश रूलर्स का शासन था। तो उन्होंने इनको वहाँ से बाहर खदेड़ कर बाहर निकाल दिया। दे वर फोर्स टू लीव दैट प्लेस एंड दे वर ड्रो आउट ऑफ दैट प्लेस। तो जो स्पेनिश रूलर्स थे उनका शासन खत्म हो गया इटली के साउथ का पार्ट जो था, इटली का जो साउथ पार्ट था वहाँ पर। तो 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस वर डिफीटेड बाय फ्रांस एंड सर्डिनिया पैडमोंट एलियंस। तो जो 1859 में क्या हुआ, जो ऑस्ट्रियन फोर्सेस थी वो भी हार गई। किन्होंने हराया? फ्रांस और सर्डिनिया की जो फोर्सेस थी उन्होंने मिलकर 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। एंड इन 1861 विक्टर एमैनुअल बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली एंड रोम वाज डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ इटली। सो इन 1861 में क्या हुआ, जो विक्टर एमैनुअल थे उन्हें यूनाइटेड इटली का राजा घोषित कर दिया गया और रोम को कैपिटल, इटली की कैपिटल घोषित कर दिया गया। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। नेक्स्ट इज विजुअलाइजिंग द नेशन, मीन्स किस तरह से विजुलाइज किया गया था नेशन को, किस तरह से सिंबल्स में, किस तरह से कौन कौन से सिंबल यूज़ किए गए थे और आर्टिस्ट ने क्या योगदान दिया इस नेशन को रिप्रेजेंट करने में, शो करने में। आर्टिस्ट इन 18th and 19th centuries personified nations. They personified the nation. They represented country as a person called allegory. उन्होंने एलिगरी के रूप में, पर्सन्स के रूप में दिखाया। फीमेल एलिगरी को यूज़ किया गया था। फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन। फीमेल फिगर को यूज़ किया गया, फीमेल फिगर्स वर यूज्ड for the allegory of nation. During French Revolution, artists used female allegory to portray ideas like liberty, justice and republic. और फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान भी क्या था, जो आर्टिस्ट थे वो फीमेल एलिगरी को ही यूज़ करते थे, फीमेल फेस को यूज़ करते थे अपने लिबर्टी को दिखाने के लिए, जस्टिस को दिखाने के लिए या रिपब्लिक को शो करने के लिए वो फीमेल फिगर का यूज़ किया करते थे। इन फ्रेंच शी वाज क्रिश्चियन मैरियन। तो फ्रेंच में क्या था, शी वाज क्रिश्चियन मैरियने था उसका नाम। और जर्मेनिया वियर्स ए कॉर्न ऑफ ओक लीव्स एट द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। तो जर्मेनिया जो है वो क्या पहनती है, वो ओक के पत्तों का ताज पहनती है, क्योंकि ओक जो है वो हीरोइज्म का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ जर्मनी, और जर्मेनिया एलिगरी बनी जर्मनी की और मैरियने फ्रांस की। इन रेड कैप द ट्राइकलर द कॉकेट रिप्रेजेंटेड लिबर्टी एंड रिपब्लिक। और जो रेड कैप थी, जो फिजिशियन कैप थी, यानी कि ये बिकमिंग स्लेव जो थे वो फ्री होने पर, आज़ाद होने पर लिबर्टी का प्रतीक थी, उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक थी। इस तरह से जो है विजुलाइज किया गया नेशन को। एंड दिस रिप्रेजेंटेड ऑल द पिक्चर्स। फीमेल फिगर को यूज़ किया गया, जो वहाँ के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट सिंबल यूज़ किए, वो भी फीमेल फिगर्स को ही प्रेफर करते थे, चाहे वो लिबर्टी दिखाना चाहते हैं, चाहे वो जस्टिस या रिपब्लिक को शो करना चाहते हैं। दे यूज्ड फीमेल एलिगरी। सो इन दिस वे वी हैव completed this chapter, the revision of this chapter we have completed. So tomorrow I'll take test of MCQ, so be ready for that and make preparations, and make sure that you all have to participate. You all have to take test that I am going to take tomorrow of this chapter number 1, the rise of nationalism in Europe. MCQ का टेस्ट है आपका, गूगल फॉर्म में होगा, साथ के साथ ही आपने करना है और साथ ही साथ आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।